Reserve Bank of India is such an esteemed organization that everyone would love to work with it. But do you actually know that there are many ways to work with the Reserve Bank of India? You might be aware about the RBI assistant examination. You might be aware about the RBI grade B examination. But guys, there are many other ways through which you can work with the RBI. So in this video, I'm going to tell you 6 such ways to work with the Reserve Bank of India. And if you are preparing for RBI examination or if you are aspiring to work with the Reserve Bank of India, this video is going to be very, very helpful for you. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. And let's start the discussion around 6 ways to work with the Reserve Bank of India. We'll start first with the most commonly known ways. That is, first is the RBI assistant examination. I will be giving you the brief also, not detailed version. Detailed version will be covered in any other video. But for every way, I will be telling you the brief information about that particular mode through which you can work with the RBI. First is the RBI assistant examination. Guys, if I tell you about the age limit, so your age must be between 20 to 28 years if you want to appear for the RBI assistant examination. Educational qualification, a candidate must hold a bachelor's degree with an aggregate of 50%, pass class for SC, ST, PWBD candidates. तो वैसे अदर कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे यूआर वाले और ईडब्ल्यू और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं गाइस, उनके लिए द क्राइटेरिया इज 50% एंड दोज हु बिलोंग्स टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स फॉर देम रिक्वायरमेंट इज जस्ट पासिंग मार्क. गॉट इट. पैटर्न की बात करें सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज देयर. बात करें सैलरी की सो दैट इज अराउंड 5.5 लाख पर एनम. सो दिस इज द फर्स्ट वे थ्रू विच यू कैन वर्क विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया as RBI assistant. Second, most commonly known is RBI grade B examination. This is also most commonly known examination, or you can say the way through which you can work with the Reserve Bank of India. If I tell you about the basic information about this particular exam, so age limit must be between 21 to 30 years. Some relaxations are provided to different categories. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके 60% मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर for the RBI grade B examination. But for SC, ST and PWBD candidates this criteria is 50%. ठीक है. Similarly, अगर आपके सपोज ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, you are not eligible through graduation, then you can apply through the post graduation. वहां पर भी आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए. ठीक है जी. बट इफ यू बिलोंग टू SC, ST, PWBD कैंडिडेट देन यू कैन सी आप यहाँ पे पासिंग मार्क्स के थ्रू भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं. बट आई एम रिपीटिंग हियर दैट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, देन डू नॉट बी कंफ्यूज कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चाहिए. नो, ओनली ग्रेजुएशन विल वर्क. बट सपोज इफ यू आर नॉट एलिजिबल थ्रू ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई थ्रू द पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल. राइट. पैटर्न की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, दैट इज फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू. सैलरी की बात करें सो रेम्यूनरेशन इज अराउंड 30 लाख पर एनम. इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हमने बहुत यहाँ पर ऑलरेडी कवर किया हुआ, यू कैन go through it on our channel. ठीक है guys, moving on to the third part, that is the RBI grade A examination, that is assistant manager exam. You would say sir grade A पर तो रिक्रूटमेंट होता नहीं है. ग्रेड A पर रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, जनरल स्ट्रीम के लिए नहीं होता है, राजभाषा स्ट्रीम के लिए होता है. सो इफ यू बिलोंग टू राजभाषा और यू कैन से प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी होता है, एक स्ट्रीम होता है, वहां पर उसके लिए भी असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट होता है. एंड ऑल्सो फॉर द राजभाषा स्ट्रीम RBI ग्रेड ए पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो. सो दिस इज अ स्पेसिफिक वन, बट यस इफ यू have this particular eligibility you can appear for RBI grade A exam as well. तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें that is 21 to 30 years. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली फॉर राजभाषा स्ट्रीम here. You must have a second class master's degree in Hindi translation with English as a subject at the bachelor's level, or second class master degree in English with Hindi as a subject at the bachelor degree level along with post graduation diploma in translation, or second class master degree in Sanskrit economics commerce with English and Hindi as a subject at the bachelor's degree level along with post graduation diploma in translation, or you can say master's degree in both English and Hindi और हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच वन मस्ट बी अ सेकेंड क्लास. तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है देन यू कैन अपीयर फॉर द RBI ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा स्ट्रीम एग्जाम. ठीक है. फर्दर यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर पैटर्न क्या रहता है. ग्रेड A राजभाषा के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू रहता है. सैलरी की बात करें सो दैट इज अराउंड 17 लाख पर एनम.
Got it. Now, guys, moving on to the less known ways through which you can work with the Reserve Bank of India. Fourth one is the RBI summer placements. RBI summer placement is also one such way through you can get the exposure to work with the Reserve Bank of India, right? तो यहाँ पर बात करें, so summer placements afford an opportunity to Indian students. यहाँ पर Indian students को opportunity दी जाती है to expose themselves to an actual central banking environment and undertake projects on the issues relevant to central bank with the guidance from experts and professionals in the central bank. तो एक्चुअल में अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है जो यहाँ पर एक्चुअल सेंट्रल बैंकिंग इन्वायरमेंट का एक्सपोजर चाहता है, सो समर प्लेसमेंट इज अ वन सच वे थ्रू विच दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन वर्क विद द आरबीआई, राइट? यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे का कोर्स यहाँ पे परसू कर रहे हैं, you are pursuing integrated 5-year course in management, statistics, law, commerce, economics, econometrics, banking and finance, या फिर 3-year full-time professional bachelor degree in law from a reputed institutions, colleges located in India, then you can apply for the summer placements. Students who are currently in the penultimate year of their course can only apply for the summer placement. यहाँ पर अगर आप अपने जो भी हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिस्कस की, अगर आप उनके लास्ट ईयर में हैं, then only you can apply for the summer placement. और इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन एवरी ईयर 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक यहाँ पर ओपन रहती है, ठीक है? और यहाँ पर बैंक जो है मैक्सिमम 125 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है फॉर द समर प्लेसमेंट एवरी ईयर. ड्यूरेशन इज ऑफ 3 मंथ्स. मैक्सिमम जो है दैट इज अप्रैल टू जुलाई. स्टाइपेंड जो है दैट विल गेट 20,000 पर मंथ. So this is the fourth such way through which you can work with the Reserve Bank of India. Fifth बात करें अगेन RBI रिसर्च इंटर्नशिप, ठीक है? ये बहुत ही लेस नोन यू कैन से वेज हैं जिसके थ्रू आप आरबीआई के साथ काम कर सकते हैं. सो दैट इज वाई आई एम कवरिंग दिस इन द वीडियो. सो दिस इज द आरबीआई रिसर्च इंटर्नशिप. RBI research internship scheme provides an opportunity to young individuals to expose themselves to cutting edge research in central banking. It best suits individuals who have been in college relatively recently and wish to move on to pursue PhD in economics, banking, finance or related fields, or to positions in a government research institutions or financial institutions that require a quantitative and analytic orientation. ठीक है? अपॉर्चुनिटी की बात करें, सो ये डोमेस्टिक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए साथ साथ में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है. यहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है, आपको इंटर्नशिप जो प्रोवाइड की जाती है वो 4 डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई प्रोवाइड की जाती है. दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च डीईपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डीएसआईएम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट एंड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट. दीज आर द 4 डिपार्टमेंट्स इन विच यू विल बी पोस्टेड और यू विल गेट द इंटर्नशिप. फर्दर और इन्फॉर्मेशन की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, सो मैक्सिमम 6 मंथ्स होता है. दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स अगर वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है और यहाँ पर इंटर्न का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, दैट कैन फर्दर एक्सटेंडेड टू 6 मंथ. स्टाइपेंड की बात करें, सो स्टाइपेंड इज 45,000 पर मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. एंड बैंक वुड सेलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 20 इंटर्न्स एवरी ईयर. तो यहाँ पे मैक्सिमम 20 इंटर्न्स की लिमिट है जो यहाँ पे रिसर्च इंटर्नशिप के थ्रू आरबीआई जो है हर साल सेलेक्ट करता है. And guys, the last way through which you can work with the Reserve Bank of India is the lateral recruitment. तो यहाँ पर lateral recruitment में आपको ग्रेड सी, ग्रेड डी एंड ग्रेड ई लेवल पर यहाँ पर डायरेक्टली काम करने के लिए मिलता है. बट ये जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन होती है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन होती है. बट यस, दिस इज ऑल्सो वन सच वे थ्रू विच यू कैन वर्क विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रेम्यूनरेशन पे आउट की बात करें, बहुत ही अच्छा रहता है. विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर आरबीआई हैज रिलीज्ड the notification for the lateral recruitment for 29 positions. 29 positions के लिए यहाँ पर, जिसमें से 27 belongs to grade C, ठीक है? 1 belongs to grade D, that is senior bank examiner liquidity risk, ये grade D से belong करता था. और 1 is from the grade E, that is program coordinator COS. तो यहाँ पे total 29 position के लिए. तो you can see कि lateral recruitment एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है. So again yes, this is an opportunity if you have a eligibility. एज की बात करें, so that varies according to the position. Generally 21 to 40 years. कुछ वैकेंसीज कुछ पोजीशन के लिए that is 25 to 40 years, कुछ के लिए 27 to 40 years, ठीक है? So that varies based on the position which you are applying. वर्क एक्सपीरियंस यहाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? पोजीशन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन होती है इसकी. सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग बाय अ स्क्रीनिंग कमिटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एन इंटरव्यू, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर होता है, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है. गॉट इट? फर्दर रेम्यूनरेशन की बात करें गाइस, सो ग्रेड सी लेवल पर दिस इज अराउंड 37.2 लाख पर एनम. ग्रेड डी लेवल पर दैट इज अराउंड 51.6
lakh per annum, and grade E level पर that is 57.6 lakh per annum along with the housing allowance. तो यहाँ पे housing allowance भी separately provide किया जाता है. So guys, these are the 6 ways through which you can work with the Reserve Bank of India. तो अगर आप अपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, so ये वो 6 ways है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं. So based on your eligibility, you can apply through the different ways to work with the Reserve Bank of India. एंड गाइस, इसी तरीके से आरबीआई के साथ काम करने के लिए हम भी यहाँ पर अथक प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु वांट टू वर्क विद द आरबीआई ऑन अ परमानेंट बेसिस, तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पर अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपना आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स भी लॉन्च किया है. एंड as a part of this guys, 2025 के end में, this is a biggest surprise here that we have come up with biggest sale of the year, that is new year resolution sale. As a part of this guys, hear me carefully, I am saying that you will get 100% extra validity guys. अगर आप 12 months का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, you will get additional 12 months, which means 24 months का आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगा at just 7299 पर. सोचिए 7299 पर सिर्फ 24 मंथ्स की आपको यहां पर वैलिडिटी मिलने वाली. पहले 12 मंथ पर मिलती, बट एज अ पार्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेल यू विल गेट एडिशनल 12 मंथ्स, बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश. ठीक है, क्या ये अनलिमिटेड है? जी नहीं, ये ऑफर जो है दैट इज वैलिड टिल 31st ऑफ डिसंबर तक के लिए है. गाइस, इतना ही नहीं है, इफ यू आर preparing for other examinations also under the regulatory domain, like for example RBI, SEBI, NABARD, PF, RDA, CDB, IFSCA, etc., then guys you must go for the regulatory super pack. आपको इस super pack में जाना चाहिए, otherwise what would happen, you will end up सब्सक्राइबिंग सेपरेट कोर्स फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप इन द रेगुलेटरी एग्जामिनेशन, बीट आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप. तो देयर इज नो मीनिंग टू हैव अ सेपरेट कोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. दैट इज व्हाई वी हैड स्टार्टेड दिस रेगुलेटरी सुपर पैक, जहां पर इस सुपर पैक के थ्रू यू कैन कवर 8+ examination under the regulatory domain at just 9299 with again 100% of extra validity. मतलब आप 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे, so you will get 12 months extra यहाँ पे. ठीक है जी. एंड अगेन दिस इज वैलिड टिल 31st ऑफ डिसंबर ओनली, राइट, बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश अगेन. ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोड यूज नहीं करेंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट. और गाइज यहाँ पे और भी है, आई टोल्ड यू कि दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर. अगर बिगेस्ट है तो यस, बिगेस्ट हो तो फिर आपको बिगेस्ट का एडवांटेज मिलना चाहिए, राइट. सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी 100% एक्स्ट्रा वैलिडिटी है. आपने अगर फेज 1 क्वालिफाई कर लिया इन एग्जाम का, गाइड यू विल गेट 50% फीस रिफंड. 50% फीस रिफंड फेज 1 क्वालिफाई करने पर. If you have qualified phase 2, then in that case 100% फीस रिफंड प्लस ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू के लिए आपको यहां पर ट्रेवल प्लस स्टे भी प्रोवाइड किया जाएगा. एंड इफ यू रिन्यू द कोर्स यू विल एंजॉय 75% ऑन योर नेक्स्ट एनरोलमेंट. गाइज यहाँ पे 1 पैक इज इक्वल टू 8 एग्जामिनेशन, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, सिडबी, पीएफआरडी, आईएफएससी, इरडाई और भी एग्जाम इसमें ऐड होने वाले हैं. एंड ऑल्सो यू विल गेट स्पिन एंड विन ऑफर, जहां पर एनरोलमेंट के बाद आपको स्पिन व्हील यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलेगा 1 टाइम. उसको आप अगर स्पिन व्हील को यूज करेंगे 1% टू 100% का गारंटीड कैशबैक आपको यहाँ पर मिलने वाला है. गाइज आई टोल्ड यू दिस इज द बिगेस्ट सेल. तो अगर बिगेस्ट है तो ऑफर भी बिगेस्ट होने चाहिए. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू वुड गेट एज अ पार्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेल. बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर, दिस इज ओनली वैलिड टिल 31st ऑफ डिसंबर, क्योंकि 2025 के क्लोजिंग में हम आपको एक बहुत बड़ी सौगात देना चाहते थे. दिस इज द सौगात दैट वी आर गिविंग यू. रिमेंबर द डेट 31st डिसंबर. अगर आप नहीं कर पाए देन 1st ऑफ जनवरी से इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है. एनरोलमेंट कैसे करना है? 2 ऑप्शंस आर देयर. आपके पास 2 ऑप्शंस है यहाँ पर. या तो आप सिंपली हमारे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का वहां पे लिंक दिया वहां पे क्लिक कर सकते हैं, और डायरेक्टली यू कैन गो टू द टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं. करना कि आपको गूगल ओपन करिए, टाइप टेक्स्ट बुक, यहाँ पर फर्स्ट लिंक विल बी अवर वेबसाइट, क्लिक हियर. इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट हमारी ओपन होगी. देन यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सुपर कोचिंग. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल सी डिफरेंट एग्जामिनेशन, फाइंड द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम. इस पे क्लिक करिए, देन यू कैन सी डिफरेंट कोर्सेज. तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नॉट एनी अदर एग्जामिनेशन, देन गो फॉर द आरबीआई.
But if you want to appear for other exam like RBI, NABARD, SEBI, PFRD, then you must go for the super PAC. Suppose if you are interested in super PAC, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है. After that you can see आपको यहाँ पे scroll down करना है so that you can get all the information related to this thing कि कौन कौन से एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं. You can watch the demo classes also so that you can get the idea what kind of teaching we are providing here, what how we are covering the component, how we are covering the topic. सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है. फर्दर इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे, विल गेट टू द चैप्टर वाइज ई बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ डेमो नोट्स यू विल बी गिवन. देन फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस टाइप के मिलेंगे. सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल, इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी, देन इन दैट केस आप यहाँ पर सिंपली एनरोल करिए, ठीक है. आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं गाइस. एंड यहाँ पर सपोज अगर आपको यू कैन सी, सपोज इफ आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको करना क्या है, आप यहाँ पर जाएंगे अप्लाई कूपन में, रिमूव द कोड, जो भी कोड यहाँ पर अप्लाइड उसको रिमूव करिए. एंड यहाँ पर रिमूव करने के बाद इसको आप यहाँ पर प्रकाश टाइप करिए, विच इज माय नेम विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. उसको अप्लाई करने के बाद यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है. तो जो प्राइस मैंने आपको शो किया था वही प्राइस पर मिल जाएगा. अभी यहाँ पर अपडेट है, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, बट द प्राइस दैट आई हैव शोन यू इन द वीडियो दैट यू वुड गेट आफ्टर अप्लाइंग द कोड प्रकाश, ठीक है. उसके बाद यू विल बी हैविंग 3 EMI फैसिलिटी ऑल्सो. आप चाहे तो लमसम भी यहाँ पर पे कर सकते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू एंड आई होप यू enjoyed the video. I hope you got to know how many ways are there through which you can work with the Reserve Bank of India. So this is all with respect to this video. We'll meet in another informative video guys. Till then, goodbye and happy learning. And before closing, I would like to repeat once again guys कि यहाँ पे 31st December is the last date जो आपको यहाँ पर याद रखनी है. And also do not forget to use the code Prakash and also do join my Telegram group through which you will be in touch with me. बहुत सारे students are already taking the benefit of this initiative जहाँ पर they ask me the query over the Telegram group and I resolve their query. ठीक है जी, चलिए bye bye. Closing the session. We'll meet in another informative video.